ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वी हैव क्रिएटेड अ बॉम्ब एंड वी हैव सीन, ठीक है, मल्टी लेवल प्लानिंग और सिंगल लेवल प्लानिंग। मल्टी लेवल प्लानिंग बेसिकली हमने देखा था, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू SAP। ओके, आई विल ओपन द सेम मटेरियल cycle. Okay, so you will see this is a cycle and these are the these are the component which is there in cycle. Okay, so I will go to again MD04. This is what it is, a stock requirement list कि आपको basically कितना material चाहिए. So currently there is a zero inventory, ठीक है। cycle का inventory क्या है, here you can also see, okay, this is what available quantity. अगर मैं MMBE पे जाके देखूंगा, so if you go and check MMBE, so you will see there is a zero inventory. Okay, there is a no stock available. So similarly it is also showing it as stock. Okay, so what we are going to do today, so we have seen that how this things work. Okay, so now if you go to like I will take material called wheel set. I will use wheel set this time, okay. I will use wheel set just to show you that how this dependence material uh, just a second, how this dependent material will work. Okay, so it is a wheel set that I'm using, an MD04 wheel set. So in wheel set, these are the plan order. Okay, so you have seen lot size, right? EX is a lot size, lot for lot order. So based on the requirement that you having a plan order, okay, or there is a dependent material is there for this wheel set. That you will see rim also having a dependent material, but lot size is different in a rim. Lot size क्या है rim में? So lot size is what? It is a weekly lot size. Okay. This is how system has considered all requirements is considered into the one plan order. Okay, so basically सारी requirements को इसने क्या किया, it's combined. So it is a dependent requirement, ठीक है। रिम क्या है, इट इज अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। टायर, ठीक है, इट इज अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। ट्यूब, इट्स अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने क्या देखा, सो एमआरपी का बेसिकली काम क्या होता है, टू डू दिस मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। और मेरे को ये सिंगल मटेरियल पे रन करना है, मल्टी लेवल पे मटेरियल करना है, सो दैट वी कैन डू इट, ठीक है। जैसे मैंने MD02 किया था, क्यों किया था, MD02 what it will do, it will do the multi level planning, ठीक है। एक मटेरियल का मैं प्लानिंग रन करूंगा, इट विल जनरेट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द डिपेंडेंट मटेरियल, ठीक है, जो कि मेरे बिल ऑफ मटेरियल में होंगे। और सिस्टम वो कहां से कंसिडर करेगा, इफ आई एम हैविंग ए मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप क्या होना चाहिए, मटेरियल टाइप इट शुड बी PD, ओके, देन ओनली इट विल कंसिडर। अगर इफ आई मेंटेन अनदर material type called ND, so then it will not work, okay, then it will not work. So it is something related to material requirement planning. But now there is another thing. अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने MRP पढ़ा था, this we have studied, okay. but now but now what is the next thing that you have to know, consumption based planning, ठीक है, consumption based planning. Okay, this part that is called consumption based planning. So consumption based planning is very important, okay. So consumption based planning, देखो हमने कौन से मटेरियल सिस्टम प्लान करेगा एमआरपी से। अभी तक के एमआरपी के सिनेरियो में जो भी आपके बॉम्ब के पार्ट होंगे, जो भी आपके बिल ऑफ मटेरियल में लग रहे हैं, सिस्टम उन्हीं को चेक करेगा कि मेरे को कितना साइकिल बनानी है, साइकिल के लिए कितना व्हील सेट चाहिए, व्हील सेट के बाद कितना टायर ट्यूब चाहिए। दैट सिस्टम इट विल कंसीडर व्हेन आई एम यूजिंग एमआरपी टाइप PD। और PD में सभी मटेरियल पे मेंटेन करूंगा जहां पे मुझको चाहिए कि मटेरियल मेरा MRP से प्लान होना चाहिए, ठीक है। MRP PD से प्लान होना चाहिए। PD कब कंसिडर करेगा, जब मेरा ये मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ बॉम्ब, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बॉम्ब। ओके, सो कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर। नाउ व्हाट इज अ कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, देखो जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में क्या यूज होता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड सम ग्लव्स आपकी कंपनी में यूज होता है, ठीक है। मतलब पर डे मेरे को ग्लव्स का रिक्वायरमेंट रहता है कि मेरे सपोज 100 मैन पावर है, ठीक है, तो हर किसी के लिए मेरे को ग्लव्स चाहिए, तो 100 पेयर्स इज माय डेली रिक्वायरमेंट। और मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, मतलब 100 प्लस
20, like this is my daily requirement, this is my 120 pairs is my daily requirement. अब मैं ये थोड़ी डाल रहा हूँ कि मेरे को कितने ग्लव्स चाहिए साइकिल बनाने के लिए। ग्लव्स इज माई बेसिकली डे टू डे रिक्वायरमेंट, जो भी मेरे शॉप फ्लोर में जा रहा है दैट पर्सन विल बी हैविंग ग्लव्स, ठीक है। सो आई एम हैविंग ए 100 मैन पावर, सो 120 पेयर्स इज अ डेली रिक्वायरमेंट। अब मेरे को देखो कितना कितना चाहिए, मतलब सपोज 31 days, फॉर दिस month I need this much of pairs of gloves. Okay, this is a one example, ठीक है। कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग में बेसिकली, अब ये चीज क्या है, ये मेरे को, ये मैं प्लान नहीं करता, किस पे प्लान नहीं करता कि मतलब मेरे को कितना साइकिल बनाने के लिए कितना ग्लव्स चाहिए। सो ये मेरा उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज साइकिल बनाने के लिए मुझे व्हील सेट चाहिए, ठीक है, व्हील सेट बनाने के लिए मुझे टायर चाहिए, ठीक है, टायर चाहिए, ट्यूब चाहिए और रिम रिम चाहिए, और मुझे क्या नट चाहिए, बोल्ट चाहिए, ठीक है, वॉशर चाहिए। अब मेरे को ये सारी चीजें चाहिए एक व्हील सेट बनाने के लिए, एक टायर, एक ट्यूब, एक रिम, 4 नट, 4 बोल्ट, 4 वॉशर, ये सारी चीजें चाहिए। कल को अब मुझे क्या है 100 व्हील सेट बनाने हैं, 100 व्हील सेट बनाने हैं, ठीक है। 100 व्हील सेट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सारी चीजें चाहिए विद दिस प्रपोर्शन, ठीक है। अब ये मेरे को इसी प्रपोर्शन में चाहिए, ठीक है, 100। अब इन सब पे मैंने क्या मेंटेन कर रखा है, जैसे एग्जांपल एमआरपी टाइप मैंने क्या मेंटेन किया है, सब पे पीडी मेंटेन किया है, ठीक है, पीडी मेंटेन किया। सो एमआरपी टाइप इज पीडी। जब मैं 100 साइकिल 50 साइकिल बनाऊंगा तो 50 साइकिल के लिए मुझे व्हील सेट चाहिए, एक आगे के लिए चाहिए, एक रियर, एक फ्रंट और एक रियर के लिए चाहिए। देन दीज आर द रिक्वायरमेंट विल बी कि मेरे को 400 नट और 400 बोल्ट और 400 वॉशर चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, सपोज नट बोल्ट एंड वॉशर इज माई, इट्स ए माई कंज्यूमेबल आइटम। मतलब ये ऐसे नहीं कि 400 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बट देर इज अनदर थिंग कि मतलब मैं उसको वैसे भी यूज कर लेता हूँ और किसी स्पेयर में भी यूज कर लेता हूँ, समझ रहे हो। नट और वॉशर ऐसे नहीं कि मैं काउंटिंग से ही मंगवाऊंगा। सो आई विल बी यूज कि मतलब मेरे को अगर 100 साइकिल 50 साइकिल बनाना होता है तो मेरा अप्रॉक्स ये 600 के आसपास कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। किसी महीने 600 होता है, किसी महीने 550 होता है। मतलब अब जाते जाते आपने 2 नट वॉशर उठा लिए या किसी ने और उठा लिया, अगर मैं उसको प्रॉपर एमआरपी के थ्रू जाऊंगा तो क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज शॉर्टेज। अगर मैंने 400 मंगाए और किसी ने मान लो 10 वॉशर 10 नट बोल्ट ऐसे ही उठा लिए कोई स्पेयर के काम को करने के लिए, ठीक है, देन आई ऑलवेज बी विल शॉर्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग हियर, कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, समझ रहे हो। सो आई विल यूज कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग की मंथली, सपोज मुझको 100 साइकिल या 1000 साइकिल मंथली बनानी पड़ती है, ठीक है। 1000 साइकिल के लिए मुझे 2000 व्हील सेट बनाने पड़ते हैं। दिस इज माई मंथली रिक्वायरमेंट, ये मेरे को नट बोल्ट वॉशर का इतना रिक्वायरमेंट रहता है हर हर महीने। बट मैंने ट्रेंड क्या देखा, सो कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग इज बेसिकली द ट्रेंड, कंजम्पशन ट्रेंड। तो मैंने सीबीपी का ट्रेंड क्या देखा, इट इज नॉट इन एसएपी, इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल कैलकुलेशन जो आप करोगे। जैसे सपोज जैन फेब मार्च अप्रैल, सॉरी, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। अब आपने देखा हर महीने आपको 8-8 हजार का रिक्वायरमेंट रहता है नट बोल्ट वॉशर का। बट आपका जो कंजम्पशन का ट्रेंड है, जस्ट फॉर एग्जांपल नट का ट्रेंड क्या है कि 6-6 8-8 हजार तो चाहिए। किसी महीने आपका 8500 कंज्यूम होता है, किसी 8500 कंज्यूम होता है, कभी आपका 7500 कंज्यूम होता है, कभी आपका सपोज 10,000 कंज्यूम होता है, ठीक है, कभी आपका सपोज 7800 इतना कंज्यूम होता है, कभी 9000 इतना कंज्यूम होता है, एंड कभी आपका सपोज 867 कभी। दिस इज योर कंजम्पशन ट्रेंड। मतलब अब आप देख रहे हो कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट तो 8000 है, बट इट इज गेटिंग वेरी एवरी मंथ, है ना। कभी आपका ज्यादा भी कंज्यूम होता है, कभी आपका कम भी कंज्यूम होता है। सो बेस्ड ऑन पास्ट कंजम्पशन ट्रेंड यू विल प्लान योर अगस्त मंथ कि मेरे को अगस्त में कितना मटेरियल चाहिए। जैसे नाउ यू विल सी इट इज व्हाट, इट इज अ 59,200। okay, so now it is a 59,200, then what is, how you will calculate it, like, ठीक है, based on 7, so you will see you having an August month requirement, this will be the
एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट कि आपका हो सकता है अगस्त मंथ में इतनी कंजम्पशन, इतना मटेरियल का आपका जरूरत पड़े. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज, अ कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग. कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो ना, वो आपको कितना साइकिल बनाने के लिए कितना नट चाहिए उसके बेसिस पे आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो. आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपकी पास्ट में कितनी कंजम्पशन हुई है, उस बेसिस पे आप नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग. ये क्लियर हुआ ना यहां तक? हेलो. ओके. Yes, sir. ओके ओके, जस्ट ओके. सो इट इज व्हाट इट इज, अ कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग. अब मेरे को सिस्टम में कैसे करना है? सपोज दैट आई क्रिएट ए वन मोर मटेरियल, दैट आई क्रिएट ए mm01. So okay, I'm creating a new material that is called nut. Okay, I will maintain all this view. Okay, accounting view. It is what it is, my nut. Suppose M10 nut. Okay, this is my M10 nut. So this is what you will see. Now this nut will be the part of my bill of material. मतलब मैं क्या व्हील को बिल ऑफ मटेरियल में डालूंगा कि मेरे को एक व्हील सेट बनाने के लिए मुझे 4 नट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, मैं अभी बाकी के मटेरियल नहीं ऐड कर रहा कि एक व्हील सेट बनाने के लिए मुझे 4 नट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, M10 नट की 4 जरूरत पड़ती है. नाउ लेट्स गो टू दिस मास्टर डेटा. ठीक है, MM02. तो नाउ आई विल गो टू MRP व्यू 1. ठीक है, LP01. So I will show you in this material MRP type there is a PD and there is a consumption based planning that you have to set up a reorder point or manual reorder point. ठीक है, VB and VM. So VM is what? This is what I am showing you. This is a automatic planning. That what system will do it for the next planning run. आपको कितना material चाहिए? That system will do it automatically based on, you just have to maintain certain parameter. Where you have to maintain that parameter? First you have to tell, okay, there is my automatic reorder point. That is what it is, my automatic reorder point. That once you maintain automatic reorder point, then system will pick this trend कि आपका पास्ट में कंजम्पशन हिस्ट्री क्या था. वेयर यू विल सी दैट पास्ट कंजम्पशन हिस्ट्री. जस्ट लेट मी मेंटेन दिस. इट इज माय ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट VM. Okay, MRP type is VM. So once you maintain VM, then system will say you have not selected a reorder point. Okay, it's a auto manual, so I need to use automatic reorder point. Okay, I need to use VM. It's a you have not maintained, no problem. So what it's saying, that is a automatic reorder point. So where you have to see that you have not maintained the reorder point, I will tell you where you have to go for the reorder point. But you see, just go to this additional data. Okay, go to here in the consumption. So this is where you will see the consumption trend. ठीक है, जैसे 1 तारीख को क्या आपका कंजम्पशन, जैसे 1/2025 में कितना कंजम्पशन हुआ, 12 दिसंबर 2024 में क्या कंजम्पशन हुआ. ठीक है, सो दिस इज योर कंजम्पशन ट्रेंड. ठीक है, सो यू विल प्लान इट. ओके, सो दैट यू डोंट हैव टू मेंटेन दिस वैल्यू. इट इज बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन हिस्ट्री. दैट सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक इट. ठीक है, दैट दिस इज माई कंजम्पशन ट्रेंड. देख रहे हो, दिस इज माई कंजम्पशन. So based on this trend, the system will automatically plan it for my next period. That is called consumption. That is called automatic planning. Okay, automatic consumption based planning. But now you have to see this important thing. Okay, just a minute. Okay, this is very important figure. Okay, this is very important figure. Reorder point. देखो, इसको थोड़ा सा ना समझना, then I will give you insight that how basically it's work in SAP. Just let me see where it is. Where is the figure? देखो, this is the figure. Okay. Now I will take the screenshot.
जस्ट अ मिनट। देखो थोड़ा सा ध्यान देना अब इसमें। okay, so now let's go to SAP. This is your ERP. okay, this is your reorder point. अभी ना रीऑर्डर पॉइंट को समझो इसको, ठीक है। ओके, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द रीऑर्डर पॉइंट। देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया एमआरपी इज अ कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग। ओके, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग। कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग में आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है ये मैनुअल रीऑर्डर पॉइंट अगर आपको दिख रहा है तो, एंड देयर इज अ ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। बोथ आर द कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, ठीक है, बट यू हैव टू सेट ए रीऑर्डर पॉइंट। अब रीऑर्डर पॉइंट बेसिकली होता क्या है, देखो अभी भूल जाओ आप, बट जस्ट अब ध्यान रखो कि आपके पास एक सर्टेन इन्वेंट्री है, दैट 1 तारीख को आपके पास एक इन्वेंट्री है, दैट दिस इज योर इन्वेंट्री, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री क्या है, 100 kg आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। दिस इज 100 kg दैट यू हैव इन्वेंट्री। तो क्या होता है, इन्वेंट्री जैसे धीरे धीरे क्या होती रहेगी आपकी, कम होती रहेगी। देयर इज अब सपोज यहां से यहां तक आए, आपकी इन्वेंट्री हो गई कम। सो दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन कॉल्ड, इट इज अ रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। इट इज अ रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट बेसिकली क्या करता है कि भाई जैसे ही मेरा 100 kg स्टॉक से मेरा इन्वेंट्री 50 kg हो गया, ठीक है। पहले मेरा इन्वेंट्री कितना था, 100 kg था। नाउ माई इन्वेंट्री इज 50 kg, ठीक है ना। 50 kg पे मैंने क्या कर रखा है, रीऑर्डर पॉइंट सेट कर रखा है। तो जैसे ही मेरा इन्वेंट्री 50 kg होगा, तब क्या होगा, एक एमआरपी यूजर क्या करेगा, एक एमआरपी रन करेगा, ठीक है। एमआरपी रन करेगा। एमआरपी रन क्या होगा, सिस्टम जब भी मैं कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग यूज कर रहा हूं और जब मैं एमआरपी रन करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चेक करेगा मेरा रीऑर्डर पॉइंट कितना है। अगर मेरी इन्वेंट्री 50 kg से नीचे है, सपोज मेरी इन्वेंट्री यहां तक पहुंच गई, यहां मेरी इन्वेंट्री पहुंच गई, इट इज अ 30 kg, 30 kg इन्वेंट्री है मेरे पास, और मेरा रीऑर्डर सेट था किस पे, 50 kg पे। तो जैसे ही मैं प्लानिंग रन करूंगा ना, सिस्टम चेक करेगा, ओके इस मटेरियल का मेरा इन्वेंट्री 30 kg हो गया है, देन इट विल शूट अप कि भाई मेरा 30 kg के बाद ये मैक्सिमम लेवल तक जाना चाहिए, यहां तक। सपोज ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल है, दैट इज कॉल्ड 500 kg। ये वाला जो लेवल है दैट इज कॉल्ड 500 kg। और मैं जो इन्वेंट्री आपको 100 kg बता रहा हूं, दैट सपोज दैट लाइज हेयर, ठीक है। मेरी जो 100 kg की जो इन्वेंट्री है, दैट सपोज दैट लाइज हेयर, ठीक है, यहाँ पे। सो जैसे ही मैं एमआरपी रन करूंगा, सिस्टम विल शूट अप, सिस्टम विल से ओके 500 kg इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। अब मेरा क्या होगा, जस्ट अंडरस्टैंड, ओके। सो माई करंट स्टॉक, आई विल शो यू दिस इन एसएपी। करंट स्टॉक कितना है मेरा, सपोज 30 kg का, 30 kg इज माई करंट इन्वेंट्री। मेरा जो रीऑर्डर पॉइंट सेट है, रीऑर्डर पॉइंट कितना सेट है, रीऑर्डर पॉइंट सेट है 50 kg। और मेरा जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम रिप्लेनिश स्टॉक है कि कहां तक जाना चाहिए, इट इज अ 500 kg। सो जैसे ही मेरा धीरे धीरे इन्वेंट्री खत्म होगा, जैसे ही मेरा 30 kg पे पहुंचेगा या 20 kg पे पहुंचेगा और मैं इन्वेंट एमआरपी रन करूंगा, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चेक करेगा, ओके मेरा जो इन्वेंट्री है वो 50 kg से नीचे चला गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक इमीडिएटली एक सिस्टम क्या करेगा, प्लान ऑर्डर क्रिएट करेगा, कितने केजी का, 500 kg का। वो फिल करेगा कि 500 kg तक आपका जाना चाहिए, ठीक है। इट विल गो टिल 500 kg एंड देन इट विल क्रिएट ए परचेज ऑर्डर और प्लान ऑर्डर फॉर 500 kg। अब क्या होगा, अब देखो, जस्ट देयर इज अ वन मोर थिंग। अभी आपने बोला कि यहाँ पे मेरा सीधा 30 kg से सीधा शूट अप करेगा। अब मेरे को यहां से यहां तक कंज्यूम करने के लिए भी तो इन्वेंट्री चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही मेरा इन्वेंट्री धीरे धीरे कंज्यूम होता रहेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक सर्टेन लेवल पे एक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा है मैंने। सेफ्टी स्टॉक मतलब कि मैंने यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक सपोज 10 kg मेंटेन कर रखा है, 10 kg इज माई सेफ्टी स्टॉक। तो सपोज अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा लीड टाइम है, ये मेरा क्या है, लीड टाइम है। लीड टाइम मतलब कि मतलब डिलीवरी टाइम, कि मतलब कि इतना दिन मेरे को वेंडर अगर मेरे को डिलीवरी करने में, मटेरियल डिलीवरी करने में लेगा। अगर मैंने इस तारीख को यहाँ पे मैंने उसको परचेज ऑर्डर दिया है, ठीक है, परचेज ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिया है, तो दिस इज द टाइम दैट माई सप्लायर विल टेक टू डू द डिलीवरी। जस्ट इन केस दिस डिलीवरी इज डिलेड, अगर मान लो मेरी डिलीवरी डिले हो गई,
ठीक है, मेरी डिलीवरी क्या हो गया, यहाँ पे डिले हो गई, बट मेरे पास सेफ्टी स्टॉक है, देख रहे हो ये डॉट लाइन, इट इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक लाइन। तो मेरे पास सेफ्टी इन्वेंट्री कितने दिन की पड़ी है, सपोज मेरे को आज इन्वेंट्री, आज 10 दिन बाद मटेरियल चाहिए और 10 दिन के लिए मेरे पास तो स्टॉक है, ठीक है, जस्ट सपोज यहां से लेके यहां तक के लिए मेरे पास स्टॉक है। बट सपोज अगर मेरे पास, अगर वेंडर फिर भी 2 दिन डिले हो गया तो मेरे पास 2 दिन की सेफ्टी इन्वेंट्री भी पड़ी है, ठीक है। सो जैसे ही मेरे पास इन्वेंट्री आएगी, दैट सिस्टम विल अगेन शूट अप टिल माय इन्वेंट्री लेवल टिल हेयर। ये समझ रहे हो यहाँ पे? एनीवन, आप गाइज आप लोग अनम्यूट कर लो, देन इट विल बी मोर क्लियर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए MM, you have to know what is your consumption based planning and how it works. Anyone? Yes, sir. Understand. Okay, so consumption based planning, it is not only कि जैसे मतलब आप प्लान तो कर लिया आपने, but you have to know the flow that how it will work in SAP. आपने 100 kg आपके पास अभी इन्वेंट्री पड़ी है, सपोज मैं मिड मंथ में बैठा हूँ, मेरे पास 100 kg इन्वेंट्री पड़ी है, मेरा मैक्सिमम कहाँ पे सेट है, मैक्सिमम मेरा 500 पे सेट है कि 500 kg मेरी मैक्सिमम होना चाहिए कि मेरे पास जब भी मैं MRP रन करूँ तो इट शुड गो टिल अ मैक्सिमम 500 kg। तो मेरे ए पे अगर इन्वेंट्री 50 kg और यहाँ पे आते आते मेरा 30 kg बचा, तो सिस्टम को पता चलेगा कि भाई मैंने रीऑर्डर 50 kg पे सेट किया था, ठीक है। अभी देखो, नाउ आई विल शो यू द लाइव प्रोसेस इन SAP. So you know the automatic reorder point, but now I will go for the manual reorder point. ठीक है, manual reorder point, all these things has to be done. Okay, that is called manual reorder point, VB. Okay, so VB is your manual reorder point. जब आप manual reorder point maintain करते हो ना, सिस्टम को बताना पड़ता है कि आपका manual reorder point क्या है। तो मेरा manual reorder point है 50, ठीक है, then hit enter, ठीक है, 50 is your manual reorder point. Then what is next? Then you have to use that replenishment to maximum stock level. This is you are going to use HB. HB is what it is a to be specified, ठीक है। HB is what maximum stock level, और maximum stock level कितना है मेरा 500, ठीक है, 500। मतलब just if you go to that document, ठीक है, if I will erase everything, okay, look, I will take that screenshot again. Okay, this is this document. I'm not using any safety stock now, but I will show you that how to it. So what I have set up, I have set up my this value I have set up as a 50 quantity. Okay, then maximum I have set it up. This is my maximum point. It is set up as a 500. Okay, and this value currently I have zero inventory. I have zero inventory. Dekho, I don't have any inventory now. So what will happen? Suppose I am using consumption based planning and this material. Now save it. Maximum it will go to the save. Okay, now this material I will open in a MD04. Okay, this material I will open in a MD04 and there is a zero inventory. Now what I will do? I will do the MRP run for the single item single level. ठीक है, इस material, this is my single material. Okay, इसके नीचे मेरा कोई material नहीं लग रहा है. This is the only material. And then I will run the MRP. Hit enter, hit enter. Okay, so you will see that there is an output. Now come and refresh it. Then you will see system has generated a purchase requisition for 500 quantity. Did you see that system has generated a inventory of purchase requisition of 500 quantity? Why? Because सिस्टम को पता चला कि भाई आपका जो स्टॉक है ना वो रीऑर्डर पॉइंट से नीचे आ गया। तो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपकी अब इन्वेंट्री कितनी बच रही है, उसको पता है कि अब आपकी जो इन्वेंट्री है ना वो खत्म होती जा रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इन्वेंट्री को फुल करना है, बिकॉज इट इज माई कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग कि भाई मेरे को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आई हैव टू गो टू द मैक्सिमम। सो इट विल शूट अप कि वो 500 kg का क्या करेगा, एक परचेज रिक्वेजिशन वेंडर को दे देगा। अब मैंने क्या किया, एक परचेज रिक्वेजिशन वेंडर को दे दिया। सपोज कहां पे दे दिया मैंने यहाँ पे MRP रन किया बीच में, और यहीं पे सिस्टम ने एक परचेज रिक्वेजिशन वेंडर को दे दिया। अब यहां से यहां तक मेरा वेंडर परचेज रिक्वेजिशन कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन में परचेज ऑर्डर जाएगा, 4 दिन में वेंडर डिलीवरी देगा। सो दैट इज माई लीड टाइम, मतलब इतना टाइम मेरा वेंडर लेगा, इट्स कॉल्ड डिलीवरी टाइम।
ठीक है, बट दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ठीक है, ये मेरी जो स्टॉक है कि मतलब इस लाइन पे मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। सो आप यहां देखोगे दैट देयर इज अ सेफ्टी इन्वेंट्री, सेफ्टी इन्वेंट्री सपोज मैंने कितने का मेंटेन किया, 10 kg का। सो अब क्या होगा कि अगर टाइम पे वेंडर ने डिलीवरी दे दी देन इट विल गो टिल दिस लेवल, तो यहाँ पे मेरे को मटेरियल रिसीव हो जाएगा। अगर वेंडर ने मुझे टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, सपोज उसने मेरे को एक दिन का मेरे पास सेफ्टी स्टॉक है और उसने एक दिन लेट डिलीवरी दी, तो मेरा जो यहाँ पे 10 डेज लगना था मेरा वो 11 डेज हो गया, ठीक है, वो मेरा 11 डेज हो गया। सो 11 डेज के बाद जब मेरे पे डिलीवरी आएगी देन आई विल, मेरा जो लेवल है इन्वेंट्री का दैट विल गेट मैच, इट इज कॉल्ड, इट इज अ 500 यहाँ पे, समझ रहे हो। सो आई हैव टू मेंटेन certain safety stock also for the consumption based planning. So this is how, if you go to SAP, that you will see that system has created a purchase requisition. Why system has created a purchase requisition? So if you go to MD03, that you will see there is a create purchase requisition. मुझे क्या create करवाना है? If I want to create a purchase requisition, then I will select 1. If I want to create purchase requisition or plan order, then I will select a 3. So this is what you need to select when you want system to consider to create a plan order. Okay, so this is the way that how it will work. Okay, so this is a one thing, like when you use consumption based planning. Now let's come back to SAP and MM02. Okay, so it is called reorder point planning. It is a MRP type. It is called VB. Okay, so this is, and lot size HB means it is a रिप्लेनिश टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल, की मैक्सिमम स्टॉक लेवल तक कितना जाना चाहिए भाई, इतना जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब आप जस्ट अज्यूम करो, आप एक सिनेरियो समझो कि आपके पास एक कंटेनर है, जस्ट आपके पास एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर दैट यू हैव, ठीक है। अब आपका क्या है, आपकी इन्वेंट्री यहाँ पे इट इज अ मैक्सिमम लेवल, कि भाई आपका उसमें बस 500 kg ही इन्वेंट्री आ सकता है, सो दिस इज अ मैक्सिमम लेवल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक रीऑर्डर पॉइंट सेट किया है कि भाई सपोज यहाँ पे आपने रीऑर्डर पॉइंट सेट किया है, इट इज अ 50 kg, 50 kg का इन्वेंट्री जैसे ही आपके पास होगा, जैसे अभी स्टॉक फुल है, आपने इसमें से यूज किया, यूज करते 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 आपका इन्वेंट्री हो गया 50 kg, तब आप क्या बोलोगे, तब आप एक वेंडर को परचेज ऑर्डर दोगे कि भाई मुझे मटेरियल चाहिए एंड इट शुड बी एट अ 500 kg, ताकि मैं उसको मैक्सिमम फिल कर सकूं, है ना, मैक्सिमम फिल कर सकूं। अब मैक्सिमम आज आपने वेंडर को दिया, 10 दिन में आप वेंडर ने डिलीवरी दी, तब तक आप क्या करोगे, धीरे धीरे ये भी यूज होता रहेगा, ठीक है, यूज होता रहेगा। यहाँ पे एक सेफ्टी इन्वेंट्री भी है, यहाँ पे आपने 10 kg का एक सेफ्टी मार्जिन लेके चल रखा है 10 kg का, कि भाई यहां से यहां तक मेरा 10 डेज लगता है, तो वेंडर का जो मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है वो 10 डेज है, 10 डेज तक मेरे पास मटेरियल आएगा, तो मैं इसको यूज करता रहूंगा, तो अब जो मेरे पास इन्वेंट्री बचेगी वो यहां तक बचेगी, ठीक है। अब सपोज किसी वजह से मेरे पास वेंडर ने मुझको एक दिन और ले लिया, और मेरे पास जो सेफ्टी इन्वेंट्री थी वो 2 दिन की थी, ठीक है, सपोज अब मेरे पास 5 kg बचा है। सो 5 kg के बाद जब वेंडर मुझे डिलीवरी ला के देगा, देन फिर से मेरा एक कंटेनर क्या होगा, मैक्सिमम लेवल तक फुल हो जाएगा। सो दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये बेसिकली कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, इट इज समथिंग दैट बिजनेस इज डूइंग ऑन द रियल टाइम बेसिस, बट दिस इज द वे दैट हाउ इट हैज टू कॉन्फ़िगर इन SAP, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर प्लानिंग। गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, Yes, sir. बट यू हैव टू यूज दिस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कि आपको कितने तक लेके जाना है, ठीक है। सो सपोज आई यूज आई डोंट यूज रिप्लेनिशमेंट, आई यूज ओनली लॉट साइज, ठीक है, लॉट साइज। तो जैसे मैंने 50 मेंटेन किया और सेव इट, ठीक है। नाउ इफ यू गो टू MD04, ठीक है, यू डिलीट दिस परचेज रिक्वेजिशन, you can delete a purchase requisition from here. Okay, go to item detail, select line item and delete it, okay, delete it. Okay, now you will see there is a no requirement. Okay, it is 0, it should go, why it is not. Okay, save it. Now you will see there is a no stock. So current stock is 0 and reorder is set up as 0. Okay, MD04, hit enter, sorry, MD03, ठीक है, MRP is carried out. Now refresh it. So you will see that purchase requisition is created for 50 quantity. तो अगर आप कोई रिप्लेनिशमेंट, कोई मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं मेंटेन करोगे, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम यहीं तक जाएगा मैक्सिमम,
ओके, सिस्टम इतने का ही क्रिएट करेगा, देन फिर आपका ही खत्म हो जाएगा, फिर सिस्टम इतने का ही क्रिएट करेगा. सो दिस हैपन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, देयर इज अ सर्टेन फील्ड्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ गो टू mm0, नो गो टू mm02 फॉर द व्हील सेट. ठीक है, गो फॉर द व्हील सेट. अभी तो देखो हमने पीडी, अब हम पीडी यूज करेंगे. नाउ आई विल बी टेलिंग यू द यूज ऑफ ऑल दीज फील्ड हेयर. ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो हमने अभी देखा कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है. ठीक है, अब मैं दैट इज अ मिनिमम लॉट साइज और मैक्सिमम लॉट साइज. देखो मिनिमम लॉट साइज में क्या मेंटेन करता हूँ, 50, या मिनिमम लॉट साइज में मेंटेन करता हूँ 100. ठीक है, 100. नाउ गो टू MD04, MD61, MD61, एंड देन आई सेटअप है कि भाई मेरे को कितना मटेरियल चाहिए. डिलीट दिस. ठीक है, एंड सेव इट. नाउ गो फॉर द MRP रन टू डिलीट ऑल दीज प्लान ऑर्डर. ठीक है, ओपन प्लान ऑर्डर. नाउ गो टू MD04. ठीक है, so as of now there is a no requirement and zero stock. Okay, what I will do, MD61 I will go and I will enter a requirement called कि मेरे को कितने का requirement है. सपोज मुझे requirement है 80 का, 80 का requirement है ना, मेरे को 80 का requirement है. This is my requirement. Save it. Now go to MD04. देखोगे कि मेरा क्या है, रिक्वायरमेंट 80 का है, बट मेरे को क्या मैंने मेंटेन कर रखा है, मैंने मेंटेन कर रखा है मिनिमम लॉट साइज इज 100, राइट. सो माय मिनिमम लॉट साइज इज 100, माय रिक्वायरमेंट इज 80. So what will happen now, you see the output, how and system will know. MD02, go to MD02 and hit enter. Now you will see that plan order is created. Now you will see how many plan order is created. Now just refresh it. देखो आपको रिक्वायरमेंट कितने का था, 80 का था. नाउ रिफ्रेश इट. सिस्टम हैज क्रिएटेड ए प्लान ऑर्डर फॉर 100 क्वांटिटी. ठीक है, 100 क्वांटिटी का सिस्टम ने प्लान ऑर्डर क्रिएट किया. व्हाई? बिकॉज आपने बोला सिस्टम को कि भाई मैं मिनिमम लॉट साइज शुड बी 100. अब मिनिमम लॉट साइज शुड बी 100 का मतलब क्या, देखो अब जब भी मैं परचेज करूंगा, सपोज देयर इज सम केसेस माय मिनिमम लॉट साइज. ठीक है, मिनिमम लॉट साइज इज इंपॉर्टेंट. सपोज मेरा कोई पैलेट है, मैं कोई मटेरियल बाहर से मंगवाता हूं और वो किस में आता है, वो आता है किसी पैलेट्स में. ठीक है, या फिर किसी एक बिन्स में आता है. ठीक है, अब ट्रक में आप देखोगे कि वो ट्रक में एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, एक पैलेट्स रखे हुए हैं, उसमें मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है. अब भाई उसमें मेरा देयर इज अ मिनिमम लॉट साइज, कि भाई जो मेरा मिनिमम, उसमें ऐसा नहीं कि पूरे पैलेट में 10 चीज की जगह है, उसमें आपने एक ही डाल के भेजा. सो मिनिमम पैलेट साइज यू हैव टू मेंटेन कि एटलीस्ट इसमें इतना मटेरियल तो आना चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट इट कैन बी ऑपरेट. और सपोज आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जस्ट एग्जांपल लाइक आप पुणे से आपको चेन्नई आना है. ठीक है, चेन्नई आना है, आपका जो मटेरियल है वो ट्रक में आएगा. अब ट्रक में ऐसा तो नहीं कि आप 1 kg मटेरियल ही मंगवाओगे. ठीक है, सो अब मैक्सिमम तो आप कितना भी मंगा सकते हो. अब सपोज ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 100 kg की कैपेसिटी है, या 1000 kg की ट्रक की कैपेसिटी है. अब उसमें ऐसा नहीं कि आप 1 kg भाई. सो देयर शुड बी मिनिमम लॉट की एटलीस्ट इट शुड कम विद 500 kg, और 100 kg इज अ मिनिमम लॉट, कि मेरा 100 kg तो मेरा आना ही चाहिए. सो विद इन वन लॉट, है ना, विद इन वन लॉट देयर इट्स कॉल्ड just let me go to, so it is what, it is a 100 kg. Okay, तो सिस्टम जो प्लान ऑर्डर क्रिएट करेगा ना फॉर द मिनिमम लॉट साइज, दैट विल बी क्रिएटेड फॉर द 100 kg. ओके, एंड नाउ व्हाट इज अ मैक्सिमम लॉट साइज. अब देखो, सो नाउ गो टू MD और गो टू MM02, go to MM02, LP01. I will remove this. I will say my maximum lot size is suppose 50 क्वांटिटी. ठीक है, जो मेरा मैक्सिमम लॉट साइज है वो कितने का है, 50 क्वांटिटी का है. और मेरा रिक्वायरमेंट कितने का है, मेरा रिक्वायरमेंट है 100 का. ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट है कितने का, 100 का. सो नाउ यू गो टू MD04. ठीक है, रिफ्रेश इट. नाउ यू रन MRP वन मोर टाइम. दिस री MRP रन MD02 and tell system, okay, this is delete and recreate planning, that I want to recreate planning. Hit enter. Okay, now come here
and refresh it. Now you will see that system has created a 2 plan orders. देख रहे हो? System has created a 2 plan order. System has created a 2 plan order. System has created a 2 plan order. अब जस्ट इससे ही समझो, इसको ही समझो. टेक ए स्क्रीनशॉट. ठीक है, इतने को ही समझो आप कि मेरा डिमांड कितने का था. मेरा डिमांड था 80 का और सिस्टम ने क्या किया, 2 प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिए. ठीक है, सिस्टम ने क्या किया, 2 प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिए कि भाई मैंने बोला कि मैक्सिमम स्टॉक, मैक्सिमम लॉट साइज कितना है मेरा, 50 है. ठीक है, मेरा मैक्सिमम लॉट साइज कितना है, 50 है. मतलब कि भाई जो मेरा प्लान ऑर्डर जो क्रिएट होना चाहिए ना, मैक्सिमम कितने का क्रिएट होना चाहिए, वो इट शुड बी क्रिएट फॉर 50 kg, है ना. मतलब सपोज मेरे ट्रक का कैपेसिटी जस्ट फॉर एग्जांपल 50 kg है, मैं उससे ज्यादा ला नहीं सकता एक बार में, एक लॉट में मैं उससे ज्यादा नहीं ला सकता. सो दिस इज फॉर ए वन लॉट, दिस इज फॉर ए सिंगल लॉट. ठीक है, दिस इज फॉर ए सिंगल लॉट. नाउ सिस्टम हैज क्रिएटेड अनदर प्लान ऑर्डर फॉर द रिमेनिंग रिक्वायरमेंट कि 80 का मेरा टोटल रिक्वायरमेंट था, 50 का एक सिंगल प्लान ऑर्डर क्रिएट हुआ, रिमेनिंग 80 बचा. तो रिमेनिंग क्वांटिटी का सिस्टम ने क्या किया, एक 30 kg का एक अलग से एक और प्लान ऑर्डर क्रिएट टू फुलफिल माय डिमांड. डिमांड कितने का था, 80 का था. नाउ सपोज व्हाट आई डू वन मोर चेंज इन दिस MM02. ओके, नाउ आई विल से माय मैक्सिमम लॉट साइज इतना है, मेरा जो मिनिमम लॉट साइज है इतना है, 40 kg. ठीक है, 40 kg दैट आई हैव मेड ए चेंज. Save it. Now do the MRP run MD02 and say delete and recreate planning. Hit enter, hit enter. Okay, MRP executed. Now go again. Okay, go to MD04. Now you will see the difference. देखो यहाँ पे अभी देखो कितना सिस्टम ने कितना क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है 50 kg और 30 kg. अब सिस्टम ने क्या क्रिएट किया है, अब सिस्टम ने क्रिएट किया है 40 kg एंड 50 kg. मतलब सिस्टम ने क्या किया, देयर इज अ मिनिमम लॉट साइज, मिनिमम, देयर इज अ मैक्सिमम. ठीक है, मिनिमम कितने का किया, मिनिमम किया 40 का, मैक्सिमम कितने का किया, 50 का. मेरी जो टोटल डिमांड कितनी थी, टोटल डिमांड कितने की थी, टोटल डिमांड थी 80 kg की. ठीक है, तो सिस्टम ने चेक किया भाई मेरा 80 kg का रिक्वायरमेंट है, मेरा मिनिमम लॉट साइज, मेरा मैक्सिमम कितने का है, तो 80 में से 50 गया, तो मैं एक प्लान ऑर्डर कितने का क्रिएट करूंगा, 50 kg का. ठीक है, प्लान ऑर्डर 1. और मेरा जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट कितना बचा, रिमेनिंग रिक्वायरमेंट बचा मेरा 80 के 40 kg. ठीक है, सॉरी 50, रिमेनिंग क्वांटिटी कितना बचा मेरा 30 kg. तो मैं 30 kg का प्लान ऑर्डर जब क्रिएट करने जाऊंगा, सिस्टम चेक करेगा कि भाई मेरा मिनिमम लॉट कितना है. भाई मेरा मिनिमम लॉट तो 40 का है, कि मेरे को मिनिमम जो मटेरियल क्वांटिटी जो परचेज करना है, या मिनिमम जो लॉट ट्रांसफर हो सकता है, या जो मिनिमम मैं परचेज कर सकता हूँ, दैट इज 40 kg. तो 30 का रिक्वायरमेंट है, that I will ignore that 30 or I will say कि okay, create a plan for 40 kg. So now you will see in this case what will happen. Your टोटल डिमांड कितने का था, 80 kg का था. अब टोटल परचेज ऑर्डर आपने कितने का क्रिएट किया, 90 kg का. वाई, बिकॉज जस्ट टू मेंटेन द सर्टेन your technical or your delivery, your logistics, all these things has to be considered when you are doing this planning. Now demand was 80 kg, now you are purchasing 90 kg. देख रहे हो ना यहाँ पे. अब ये डिपेंड करता है कि देखो, ये ऐसा नहीं कि सारी चीज एक साथ यूज होती है. ठीक है, कहीं पे आपका मिनिमम होता है, कहीं पे आपका मैक्सिमम होता है. सो इट्स डिपेंड, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट वी हैव विद द लॉट साइज हियर. क्लियर है यहाँ पे. Now what is the next important thing, even it is a lot for lot order. ठीक है, ये lot for lot order. Now there is a fixed lot size. ठीक है, fixed lot size. Now suppose you want to use a fixed lot size कि आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपका कितने का है, but there is a fixed lot size, fixed order quantity कि मेरा जो भी हो, there is a fixed order quantity for 150. Now save it. ठीक है, save it. फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी की मेरा भाई सिस्टम इतने का ही रिक्वायरमेंट रेज करेगा, इट विल नॉट चेक एनीथिंग. नाउ सेव इट एंड गो टू MD04. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू द रीरन MRP MD02. ठीक है, हिट एंटर, सॉरी, गो टू MD02. दिस इज डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग. ठीक है, देयर इज आउटपुट. नाउ यू रिफ्रेश इट. अब आप क्या देखोगे, सिस्टम ने क्या किया, एक प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिया 150 kg का.
देख रहे हो टोटल डिमांड कितना था 80 80 80 और 80 कितना हुआ सिस्टम है 320 ठीक है 320 मेरा क्या था टोटल डिमांड कितना हुआ 320 का ठीक है फॉर टोटल डिमांड इज हाउ मच 80 into 4 so it is a 320 kg और प्लान ऑर्डर क्रिएटेड एक मेरा कितने का क्रिएट हुआ एक 150 का एक 150 सॉरी एक 150 का और एक 150 का तो अब देखो तीन प्लान ऑर्डर क्रिएट हुए तीनों का टोटल रिक्वायरमेंट कितने का हो गया रिक्वायरमेंट हो गया 150 का ठीक है देखो तो अब सिस्टम ने क्या किया ना सिस्टम ने तीन प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिए ठीक है अब आप क्या करोगे कि आपका जो तीनों का मतलब अब इसमें क्या बोला कि भाई मेरा जब भी डिमांड आएगा ना तो मेरा एक प्लान ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए एंड इट इज अ फिक्स वैल्यू फिक्स क्वांटिटी का क्रिएट होना चाहिए दैट इज अ 150 तो सिस्टम ने वही किया सिस्टम ने एक प्लान ऑर्डर क्रिएट किया ठीक है आपका जो रिक्वायरमेंट था वो कितना बचा जैसे 350 और 150 आपका जो रिक्वायरमेंट बचा इतने का बचा 170 का फिर सिस्टम ने क्या किया अभी भी आपका डिमांड पूरा नहीं हुआ फिर सिस्टम ने एक और प्लान ऑर्डर क्रिएट किया 170 माइनस 150 तो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी बचा सिस्टम ने कहा कि अभी भी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुआ तब सिस्टम ने क्या किया एक और प्लान ऑर्डर क्रिएट किया बट यहां पे देखो सिस्टम ने ये नहीं चेक करेगा कि आपका जो एक्सेस है कि आपने भाई कि अब मेरी टोटल डिमांड तो 320 की थी बट मेरी टोटल सिस्टम ने परचेज ऑर्डर कितने का क्रिएट किया सिस्टम ने किया 450 का ठीक है नाउ देर इज द इन्वेंट्री विल बी एक्सेस ठीक है बट इन्वेंट्री कितनी एक्सेस है जस्ट माइनस दिस इट्स अ 130 kg आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री है बट दिस इज अ प्लानिंग सिनेरियो ठीक है मतलब अगर आपको इस तरीके का सिनेरियो कि आपकी टोटल डिमांड आएगी आप बस एक फिक्स प्लान ऑर्डर वेंडर को दोगे कि भाई मेरे को हर बार 150 kg मटेरियल चाहिए अब सपोज मेरी ये डिमांड कितनी थी ये 500 kg की मेरी डिमांड होती तो सिस्टम क्या करता एक प्लान ऑर्डर क्रिएट करता देखता ओके अभी भी 350 का रिक्वायरमेंट है फिर एक और करता फिर देखता ओके अभी भी पेंडिंग है फिर एक और क्रिएट करता देख रहे हो फिर एक और क्रिएट करता फिर देखता कि 50 की जरूरत अभी भी है तो सिस्टम एक और क्रिएट करता 150 का एक और प्लान ऑर्डर क्रिएट करता देन यू वुड बी माइनस 100 ठीक है माइनस आप 100 kg स्टॉक आपके पास एक्सेस रहता गाइस ये क्लियर हो रहा है ना दिस इज व्हाट यू कॉल्ड व्हेन यू यूज फिक्स्ड लॉट साइज मतलब सिस्टम हमेशा ट्राई करेगा कि जो भी आपकी डिमांड हो वो फुलफिल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि उससे कम हो टोटल डिमांड मेरी 100 kg की है 1000 kg की है तो सिस्टम प्लान करेगा वट एवर आप सिनेरियो लो सिस्टम ट्राई करेगा कि आप उसको फुलफिल करो 1000 kg की डिमांड को फुलफिल करो अब ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि भाई आपको 1000 kg का आपको चलो कोई बात नहीं अगर 1200 kg हो जाता है बट इट शुड कंप्लीट दिस डिमांड क्लियर हो रहा है ना ये so it is important here so this is called your maximum lot size or it is called fixed lot size okay now let's go back to material master mm02 okay mm02 it is now I'm using lot for lot order and I'm removing this field ठीक है अब सपोज मैं क्या करता हूँ इस पे 1% स्क्रैप मेंटेन करता हूँ देखो 1% मैंने स्क्रैप मेंटेन किया 1% मैंने स्क्रैप मेंटेन किया असेंबली स्क्रैप सो देयर इज अ दिस विल बी यूज इन योर प्लानिंग ठीक है 1% मैंने स्क्रैप किया नाउ आई विल गो टू MD61 ठीक है और आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस और मैं क्या करता हूँ एक 100 का एक प्लान ऑर्डर क्रिएट करवाता हूँ ठीक है सेव इट आई विल डू द MRP रन ठीक है MD02 एंड इट इज डिलीट एंड रीक्रिएट प्लानिंग डिलीट एंड रीक्रिएट प्लानिंग ओके नाउ गो टू MD04 अब देखो सिस्टम ने क्या किया सिस्टम ने प्लान ऑर्डर कितने का क्रिएट किया 100 का क्रिएट किया बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर 100 एंड 100 सिस्टम हैज क्रिएटेड नाउ यू विल सी देयर इज अ स्क्रैप सिस्टम ने क्या किया 1% स्क्रैप कैलकुलेट किया अब इसके नीचे के मटेरियल देखो नाउ सपोज इफ यू गो एंड चेक द मटेरियल बिलो देयर इज अ रिम की प्लानिंग कितनी की है सिस्टम ने की है 101 भाई मुझे 101 रिम चाहिए अब जस्ट इसका मतलब क्या है असेंबली स्क्रैप का मतलब क्या है बेसिकली असेंबली स्क्रैप कि मैंने असेंबली स्क्रैप मेंटेन किया 1% दैट फील्ड इज इन अ परसेंटेज ठीक है और मेरे को टोटल डिमांड मेरी कितने की है टोटल डिमांड है मेरी सपोज 100 की ठीक है तो
अगर मैं स्क्रैप को कंसीडर करूं तो मेरा टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया इंक्लूडिंग स्क्रैप, कि भाई मैं जो एक साइकिल बनाता हूं तो, या मैं एक व्हील 100 व्हील सेट बनाता हूं तो मेरा एक व्हील सेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो मेरी टोटल डिमांड कितने की होगी, 101 की। और अब उसके लिए जो मेरे को रिम चाहिए, ट्यूब चाहिए और टायर चाहिए, अब वो कितना कितना हो जाएगा, 101, ठीक है। सिस्टम ऑल्सो मेक श्योर कि आपका जो मटेरियल है दैट शुड गेट प्लान प्रॉपरली, कि अब आपको व्हील सेट डिमांड तो आपकी भाई 100 की आई थी, ठीक है, डिमांड तो 100 की आई थी, लेकिन 1% मेरा स्क्रैप भी लगता है यहाँ पे, तो टोटल डिमांड होगी 100 प्लस 1, 101। तो सिस्टम ने ट्रिम का कितना डिमांड दिया, 101 का डिमांड दिया, ट्यूब का कितना दिया, 101 का दिया, इसका कितने का दिया, 101 का दिया। देख रहे हो यहाँ पे, इट इज कॉल्ड असेंबली स्क्रैप, ठीक है, इट इज कॉल्ड असेंबली स्क्रैप। नाउ सपोज आई गो टू MM02, ठीक है, मैं क्या करता हूँ MM02 व्हील सेट पे जाता हूँ और मैं यहां से असेंबली स्क्रैप हटा देता हूं, मेरा कोई असेंबली स्क्रैप नहीं है, ठीक है, सेव। मैं क्या करता हूं, अब नाउ देयर इज अ मटेरियल डिपेंडेंट मटेरियल, मेरा ट्यूब लगता है साइकिल बनाने में, मेरा ट्यूब लगता है। तो ट्यूब पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं कोई लॉट साइज कोई स्क्रैप नहीं मेंटेन करता हूं, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे MRP 3 व्यू में, सॉरी 4 व्यू में, यहाँ पे मेरा स्क्रैप कंपोनेंट स्क्रैप आता है, तो मैं बोलता हूं कि मेरा 2% कंपोनेंट स्क्रैप होता है। मतलब कि जब भी मैं 100 व्हील सेट बनाता हूं, है ना, या जो भी मैं व्हील सेट बनाता हूं, तो उसमें हमेशा ना मेरा 2% मेरा कंपोनेंट स्क्रैप रहता है। मतलब अगर मेरे को 100 व्हील सेट बनाने हैं तो ये तो मेरा जीरो हो गया, असेंबली स्क्रैप तो मेरा जीरो हो गया, ठीक है। तो टोटल डिमांड तो मेरी 100 की हो गई, ठीक है, इंक्लूडिंग स्क्रैप, बिकॉज स्क्रैप इज जीरो। अब क्या करना चाहिए सिस्टम को, कि भाई रिम तो मुझे 100 ही चाहिए, टायर भी 100 ही चाहिए, बट ट्यूब मेरे को क्या है, 102 चाहिए। मतलब कि जब भी मैं व्हील सेट बनाता हूं ना, तो मेरा जो कंपोनेंट स्क्रैप है वो 2% है, ठीक है, 2% है मेरा कंपोनेंट स्क्रैप। सो 2% क्या होता है कि जब मेरे को अगर 100 व्हील सेट बनाने हैं तो मेरे को 102 ट्यूब चाहिए, क्योंकि 2 ट्यूब हो सकता है स्क्रैप हो जाती हैं, फिटमेंट करते टाइम खराब हो जाती हैं, दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट स्क्रैप। तो अब आप क्या देखोगे जब आप MRP रन करोगे दोबारा से, ठीक है, 2% मैंने मेंटेन किया, MD02 से आपने दोबारा से MRP रन किया किसका, व्हील सेट का, ठीक है, हिट एंटर हिट एंटर। नाउ गो टू MD04। सो ओके, इसका डिलीट नहीं हुआ क्या, जस्ट ए मिनट। ओके, सो अब देखो व्हील सेट का आपने MRP रन किया, ठीक है, व्हील सेट का आप दिस व्हील सेट आपका रिक्वायरमेंट कितना था, 100 का। अब यहाँ पे कोई स्क्रैप नहीं है, ठीक है, कोई स्क्रैप नहीं है। तो सिस्टम ने क्या किया, रिम का भी 100 ही डिमांड दी आपकी, भाई 100 ही बनाना है, टायर भी आपको 100 ही चाहिए। और जब आप देखोगे ट्यूब, भाई ट्यूब का क्या हुआ, देयर इज अ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, सिस्टम ने क्या बोला, 102 चाहिए, बिकॉज देयर इज अ 2%, देयर इज अ स्क्रैप, देयर इज अ कंपोनेंट स्क्रैप। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, एनीवन? कंपोनेंट स्क्रैप मींस जब भी मैं ये ट्यूब कहीं पे भी यूज करूंगा, या जब भी ये मुझे ट्यूब चाहिए ना, सो इट्स जनरेटेड 2% ऑफ माई स्क्रैप, कंपोनेंट स्क्रैप। Okay, guys, let me know if you have understood this, but there's a few things more in MRP area, MRP planning. So we will plan it in a next class. Then this, now it is open for any question, answers, anyone.